بجھتے ہوئے چراغ فروزاں کریں گے ہم، بجھتے ہوئے چراغ فروزاں کریں گے ہم، تم آؤ گے تو جشن چراغاں کریں گے ہم۔ اسٹیج پہ دعوت دے رہا ہوں محترم المقام سینئر لیکچرر جناب شفیق احمد صاحب کو کہ وہ آج کی تقریب کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم شفیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت مآب صدر محفل جناب پرنسپل بوائز ہائر سیکنڈری اوڑی مشتاق سوپوری صاحب، اپنے لیکچرر صاحب جناب وریندر سنگھ جی، اپنے لیکچرر صاحب جناب یونس ککرو صاحب، تحصیل پریزیڈنٹ جے کے ٹیچرز فورم یونین اعجاز احمد لون صاحب، یہاں کے اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب مسٹر محمد شفیق صاحب، اور باقی میرے اساتذہ کرام جو یہاں اسکول کے وابستہ ہیں ان کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو اور تمام آئے ہوئے یہاں کے جو باشندے ہیں، اپنے مہمان جو ہیں یہاں کے گاؤں کے، ان سب کو میں ایک مرتبہ اور سلام پیش کرتا ہوں ان کی خدمت میں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جہانگیر صاحب کا کہ تھوڑا آنے کا یہاں موقع ملا۔ اپنے اسکول کے حوالے سے کچھ تعارفی کلمات آپ کے زیر نظر کروں گا، اور سب سے پہلے اپنے آپ کی یہ بھی خوشی ہے کہ اپنے آفیسر صاحب مشتاق سوپوری کے ساتھ آج یہ ہندوستان کا جو آخری گاؤں ہے اس کو پہلی بار دیکھنے کا ہمیں موقع ملا، اور یہاں پر اس اسکول کو دیکھ کر یہاں کے بچوں کے جو پرفارمنس ہے ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب چینلوں پر، سوشل میڈیا کے ساتھ کے ذریعے سے اعجاز صاحب کے اکثر شیئر کیے ہوئے پروگرام ہم دیکھتے ہیں یہاں کے اساتذہ کرام کے، جو سب سے پہلے ہم ان کی طرف سے اپنے پرنسپل صاحب کی طرف سے اپنے تمام ٹیچر فیکلٹی کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو مبارک دیتا ہوں کہ بڑی محنت اور لگن کرتے ہیں یہاں پر، اور آپ لوگوں کا بھی کافی تعاون ان کو مل رہا ہے یہاں پر، وہ بھی پوری طرح سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ یوں تو پروگرام ہوتے ہی آ رہے ہیں، بہت سے کلچرل پروگرامز ہوتے آتے ہیں، اڑی میں ہم کرتے ہیں، بارہمولہ میں کرتے ہیں، ہیڈ کوارٹرز پر ہوتے ہیں، ہر ایک فیسلٹی موجود ہوتی ہے وہاں پر، لیکن یہاں ایسے پروگرام منعقد کرنا میں نے دیکھا کہ پوری طرح سے ان کا جو وہ کمپٹیشن لیول جو ہوتی ہے وہ پوری طرح سے مقابلہ کرتے ہیں، اور بہت زون اڑی جو ہے اس میں ٹاپ یہی کر رہا ہے، اسکول کر رہا ہے، اچھی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ جائز صاحب کا پروگرام نے یہاں تو وہ بھی یہاں پر آئے تھے ایک دفعہ، اور ایس ڈی ایم صاحب بھی آئے تھے، زاڈیو صاحب بھی آئے تھے، تو یہ دیکھ کر اس بات سے پورا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے اساتذہ کرام کی چھٹیاں ہونے کے باوجود بھی آج 3-4 دنوں سے 5 دنوں سے چھٹیاں ہوئی ہیں، پھر بھی یہ اپنے اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس سے ہمیں فخر، ہم سر اونچا کر رہے ہیں اپنا، کیونکہ استاد جو ہے چاہے وہ ہمارے پرائمری اسکول کا ہے، چاہے وہ چھوٹے اسکولوں کا ہو، چاہے کالج کا ہو، ہم سارے ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو استاد جو ہے پڑھانے والا جو بھی ہے وہ استاد ہی ہے، چاہے وہ کالج میں ہے چاہے وہ یونیورسٹی میں ہے، استاد ہی ہوتا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ اپنے ایسے اساتذہ کرام جو یہاں پر اتنی محنت، تو کم سے کم ہمیں یہ بھی کہنا کہ ہمارے اساتذہ کرام کہیں نہ کہیں ایسا کام کر رہے ہیں، تو بڑی ہمیں فخر سے سر اونچا ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کرام کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور خاص کر یہاں کے بچوں کا ٹیلنٹ بھی ہے، بہت اچھا ٹیلنٹ ہے یہاں کے بچوں کا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ویسے ماں باپ سب پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، ایون کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے پہلے یہ پوچھ ہوگی کہ ہم نے اپنے بچے کو تعلیم و تربیت دی، وہ کیسی دی، اسی بات کی پوچھ ہوگی، نہ مکان کی پوچھ ہوگی، نہ شادیوں کی پوچھ ہوگی، نہ بلڈنگ کی پوچھ ہوگی، نہ زمینوں کی ہوگی کہ آپ نے کتنی زمینیں لے کر دی، بچوں کی کتنی شادیاں کرائی، بچوں کو کتنے مکان بنا کر دیے، نہیں، سب سے پہلی پوچھ ہوگی کہ بچے کو آپ نے تعلیم جو دی کیا وہ صحیح تعلیم دی یا نہیں دی۔ تعلیم اور تربیت جو ہے ہمارا بچے کا جو اس دنیا میں آنا بھی شروع ہوتا ہے تعلیم سے ہی، اور جو زندگی سے جب چلا جاتا ہے تو وہ یہی اس کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ہم بحیثیت یہاں پر ہمارے پیرنٹس بھی موجود ہیں، اور ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں یہ ضروری ہے، ہمارے اساتذہ کرام اس جگہ بہت ہی ایکٹیو رہتے ہیں، بہت ہی اس بات کا ان کو یہ خیال پورا ہوتا ہے کہ جو بچے ہمارے اسکول میں آتے ہیں، تو جو بچوں کو ہم یہ تعلیم سے روشناس کر رہے ہیں
जिन घरों से ये बच्चे आ रहे हैं, क्या उन घरों के माँ बाप इन बच्चों को कभी पूछते हैं कि आपने क्या किया, आपको कितना पढ़ाया गया स्कूल में, कौन कौन टीचर आया था? लेकिन उस सोसाइटी में काफ़ी देखा गया है जहाँ पर पेरेंट्स जो होते हैं वो बाखबर होते हैं इस चीज़ों से और पूछे जाते हैं। तो हमारी उड़ी का एक, मैं बहुत से एरियाज में यहाँ घूमा हूँ, ये बदकिस्मती की बात है, हम अक्सर पंचायत के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं, पटवारियों के पीछे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खर्च होता है, ब्लॉक के कामों में हम अक्सर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे कामों में जिनसे हमारे ज़ाती मफाद जुड़ा होता है। फिर हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा बच्चा जो है, जो कल नहीं आने वाले वक्त का हमारा जो है पूरी कौम इसके कांधों पर है। एक बच्चे पर यह है, ज़रूरी है कि बच्चा जो है, ये सबसे बड़ा कीमती जो हमारे पास असासा है वो यही बच्चा है। इस बच्चे को जितनी तालीम आप तरबियत सही देंगे तो ये समझ लोगे कि मरने के बाद भी इसका जो है सदके जारी में चलता रहेगा। इसी बात की पूछ होगी। तो हम ये नहीं गौरा करते हैं कि हम जरा देखें स्कूल की हालत क्या है। इसके हेडमास्टर साहब ने हमें बुलाया है, देखेंगे कि उसकी स्कूल की प्रॉब्लम उसको क्या है। उस्ताद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, इसकी यही बात होती है कि ये फॉर्मल लेटर भेजेगा अपने ZDO साहब को, अपने CO साहब को, उनकी बात में काम है वो स्कूल की प्रॉब्लम उसको हल करे नहीं, बल्कि पब्लिक की जो आवाज़ होती है इसको सुना जाता है। बहरहाल यहाँ ये चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी इस मौके पर हमें कभी मौका आता है कहने का। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आज हम जिस सिलसिले में यहाँ हम आए हैं और आपको ज़हमत दी है यहाँ पर आने की, ये एडमिशन ड्राइव के सिलसिले में हम बॉयज़ हायर सेकेंडरी उड़ी, क्योंकि यहाँ का एक अहम अदारा है उड़ी का, बॉयज़ हायर सेकेंडरी उड़ी है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी उड़ी है, जो आप जानते हैं कि 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक जो बच्चे की जो तालीम का सिलसिला है, 4 सालों की जो 4 क्लासों की तालीम जो मुहैया करते हैं वो इन 4 क्लासों की तालीम होती है और यहाँ से बच्चे की डायरेक्शंस होती है। इसी 9th क्लास में जाकर बच्चा अपने लिए आगे जो है रास्ते मुंतखब करता है, इसको किस रास्ते में जाना है। जो भी 9th में जाएगा फिर 10th में जाएगा, 10th पास करके इसको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, टीचर, डॉक्टर, लॉ वगैरह यहीं से मिलते हैं रास्ते। और आप देखते हैं कि बॉयज़ सुनते भी होंगे कि हमारी जो हायर सेकेंडरी है, पिछले 3-4 सालों से जब से हमारे ये साहब आए हैं, मुश्ताक साहब, वो इस हायर सेकेंडरी का पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, JND की, बल्कि पूरी स्टेट में आप देखोगे कि एक नया नाम आया है। स्कूल में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है, काफ़ी तरक्की हुई है। हमारा स्कूल आपको बाज़ाब्ता तौर से लेबॉर्ट्री की फैसिलिटीज़ हमारे पास है, फिजिक्स लैब की है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा हमारे पास ICT लैब का बेशबहा खजाना मौजूद है, जहां पर 15-20 कंप्यूटर्स लगे हैं। बच्चा ऑनलाइन अमेरिका के टीचर से बात पूछ सकता है, बच्चा दिल्ली के टीचर से बात पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है ऑनलाइन। वहां से हम बड़े बड़े मुल्क के नामवर उस्ताद ज़कराम की वो क्लासें ले सकते हैं। इतनी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। 24 घंटे हमारे पास बिजली फैसिलिटी वहाँ पर है, पूरा सोलर प्लांट है। बच्चा अगर चाहेगा तो वहाँ बैठ कर रह सकेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं उसकी होगी। लेकिन वो सब हम टीचर्स जो है हम गाइड के तौर पर काम करते हैं, रहबर के तौर पर काम करते हैं। आगे बच्चे का शौक तो सबसे पहले हमें ही उसको दिलवाना है। जो ये स्टेज है ना, ये प्राइमरी का स्टेज है, बच्चा जो है यहाँ से बहुत कुछ सीख जाता है। यहाँ सबसे जो उस्ताद साहब को, हमारे उस्ताद को जो सबसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, वो यहीं से करनी पड़ती है। फिर 11th 12th 9th की बात नहीं है, वहाँ बच्चा काफ़ी जान चुका होता है। अब देखिए लैब की फैसिलिटी, लेबॉर्ट्री, लाइब्रेरी हमारे पास ऐसी कि जहाँ पर 5000 से ज़्यादा किताबें हैं। गोजरी में हमारे पास बहुत सारा मवाद दस्तयाब है, पहाड़ी में हमारे पास दस्तयाब मौजूद है, बड़े बड़े आथर्स की किताबें हैं, और इसके अलावा उर्दू की किताबें हैं, हमारे पास इंग्लिश की हैं। यानी अपने बच्चे को किताबें लाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो लाइब्रेरी में बैठकर अपने नोट्स बना सकता है, वहाँ पढ़ सकता है। रीडिंग रूम की फैसिलिटी हमारे पास है, हर दिन हमारे 4-4 5-5 अखबार पहुँचते हैं, हमारे पास मैगजीन्स पहुँचते हैं, हर हफ्ते के मैगजीन्स आते हैं वहाँ पर। और इसके अलावा हमारे पास वहाँ से जितने भी कंपटीशन लेवल के बच्चों को करने होते हैं वो मैगजीन हमारे पास पहुँचते हैं। रिसेंटली 5-6 दिन पहले हमने वहाँ पर एक इस उड़ी के कल्चर के साथ वाबस्ता एक गैलरी खोली है। गैलरी क्या है, कमरा है, आप हाल देखोगे, वहाँ पर हमारे उड़ी के साथ जो कल्चर है हमारा, जो हम इसको कहेंगे कल्चर की हमारा
जो खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका जो है, इसके साथ जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे उसके फ़ोटोज़, और उसके अलावा जो हमारे चीदा जो हस्तियां हैं यहाँ उड़ी से निकली हैं उनके साथ मुतारिफ कराना, बच्चा देखेगा कि ये कौन है, ये कौन है, उसके बारे में वहाँ उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि बेटा ये हमारे पास हमारे बहुत बड़े हस्ती जो आज से पहले 100 साल या 50 साल उड़ी की हैं, रह चुके हैं, इन्होंने क्या क्या खिदमत यहाँ की है, वो वहाँ से बच्चा जो है उसकी उस एक तो इजाफा होता है उसकी नॉलेज में, और दूसरा बच्चे को एक अंदर से एक जज्बा पैदा होता है कि मैं भी कुछ करूं। इसके अलावा हमारे पास 2 वोकेशनल सब्जेक्ट्स आए हैं। वोकेशनल इन द सेंस आप ऐसे समझोगे कि 9th के बाद बच्चा एडमिशन एक 5वां सब्जेक्ट ऐसा रख सकता है कि 12वीं क्लास के बाद उसको वहाँ डिप्लोमा मिल जाएगा। एक तो हमारे पास हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर ये है कि वो सेहत के साथ जुड़ा है, जैसे हॉस्पिटल्स में एक नर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे हॉस्पिटल्स में वहाँ पर वो नर्स जो है वो इंजेक्शन करना सीखती है, वो ड्रिप लगाना सीखते हैं, वो ये प्लस बंडेज वगैरह वो क्या करते हैं उसको वो सिखाया जाता है, ड्रेसिंग वगैरह। ऐसा ही एक इसको वहाँ पर तो प्रैक्टिकली यहाँ पर बाज़ाब्ता बुक्स भी है इसके लिए, और प्रैक्टिकली उसको हमारे पास एक पूरा एक हॉस्पिटल जितना एक कमरा है जहाँ पर बच्चे को सारी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर यहाँ का बच्चा इतने दूर दराज इलाके का बच्चा वहाँ जाएगा, ये 4 साल वहाँ से पढ़ के या 3 साल वहाँ से पढ़ के निकलेगा, अगर वो नौकरी तो उधर से करता है, चाहे वो टीचर है चाहे वो किसी और नौकरी में है, लेकिन इस गांव में अगर यहाँ इंजेक्शन करने वाला वक्त पर नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल उसके पास सर्टिफिकेट है, उसको कोई रोकेगा नहीं, वो इंजेक्शन कर सकता है, वो ड्रिप लगा सकता है, वो फर्स्ट एड आपको अच्छी तरह से दे सकता है। अचानक अगर किसी को कोई एक्सीडेंट का हादसा होता है छोटा मोटा, उसको वो ड्रेसिंग वगैरह भी कर सकता है। वो 3 सालों में वो हेल्थ केयर से वो सीख सकता है, वहाँ पर वो लैब उसको वो प्रोवाइड करती है हमारी। उसके अलावा IT लैब है हमारी कि IT लैब से वो कंप्यूटर बिल्कुल पूरी नॉलेज सीख कर आता है वहाँ से इन 3 सालों में 4 सालों में। उसकी भी कोई एक तरफ से वो अपने सब्जेक्ट पढ़ता है, तो दूसरी तरफ से ये 5वां सब्जेक्ट उसको पढ़ता है, उधर से उसका भी रूटीन जो एजुकेशन है उसमें कोई फर्क नहीं आता है, वो भी कंटिन्यू करता है, और उधर से ये चीजें वो सीखता है, उधर से उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलती है। बाय द वे अगर 12th के बाद अगर किसी मसला से वो स्कूल छोड़ देता है, उसको बाज़ाब्ता FM PHW या वो जो हमारी नर्सें हैं या ऐसे दूर दराज इलाकों में जहाँ प्राइमरी हेल्थ या छोटे से छोटा फर्स्ट एड सेंटर खुला है, वहाँ उसको गवर्नमेंट जो है वो मुलाजमत भी दे सकती है। तो बहरहाल ये चीजें हैं। और इसके अलावा हमारे पास प्ले ग्राउंड बड़ा अच्छा उड़ी का मिनी स्टेडियम है, जहां पर हमारे बच्चे खेल कूद के मैदान में भी काफी आगे जाते हैं। हमारे पास NCC का एक पूरा पोर्शन है, हमारे बच्चे NCC में 20-25 जाते हैं, वहाँ जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन है, सर्टिफिकेट मिलती है बच्चे को। नेशनल लेवल वो जाता है, फिर नेशनल लेवल पर वो बच्चे जो होते हैं उनको वहाँ पर इंटरव्यूज में 5-5 मोमेंट मिलते हैं। इवन कि इसी NCC बच्चा सिलेक्ट होकर दिल्ली की रिपब्लिक परेड में जा सकता है। टीचर हमारे पास 2 टीचर इसके लिए अवेलेबल हैं जो इनको पूरी तरह से सिखाते हैं। NCC में जाना, उनको वहाँ से पूरा वो ड्रेस मिलता है, यूनिफॉर्म मिलती है, तो इसके लिए। इसके अलावा बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, और भी एक बिल्डिंग आने वाली है हॉस्टल फैसिलिटी, कि अगर कोई दूर दराज बच्चा है जिसको रहने का कोई पाव नहीं, वहाँ उनको हॉस्टल भी मिलने वाला है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल साहब, 2-3 सालों पैसा भी शायद आया है उसके लिए, 2-3 सालों में हमारे हॉस्टल एक बिल्डिंग मिलने वाली है जहाँ के बच्चों को भी, जो दूर दराज बच्चे हैं उनको भी रहने सहने का मौका मिल जाएगा। तो इसके अलावा हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जो 9th का यहाँ 8th का पास बच्चा जाता है, बॉयज़ की हम बात करें, हमारे पास गर्ल्स हायर सेकेंडरी भी है, वो भी बड़ी अच्छी हायर सेकेंडरी है, वहाँ भी अच्छे टीचर्स हमारे पास आपको अच्छे नए टीचर्स ऐसे अवेलेबल हैं जो सारे PhD करके निकले हैं। कम से कम मैक्सिमम टीचर्स हमारे पास PhD होल्डर्स टीचर हैं, PSc क्वालिफाइड लेक्चरर्स हैं। हमारा हायर सेकेंडरी का स्टाफ जो है, सेकेंडरी का स्टाफ है, माना हुआ स्टाफ है, इस वक्त बड़े हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं। और आज भी हमारी हायर सेकेंडरी जो है कम से कम 4-5 बजे बंद होती है, 5 बजे, उसके बाद भी हमने खुला रखा है। वहाँ पर चौकीदार होता है, अगर हमारे आम लोग भी वहाँ आते हैं, रीडिंग रूम में, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, देर तक खुलने का उसका कोई भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे स्कूल को जिस मकसद के लिए हम आए हैं कि एडमिशन आप अपने बच्चों का वहाँ कराएंगे, बॉयज़ का एडमिशन, इसके अलावा भी हमारी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि अपने बच्चों को ऐसे उस्ताद, आप खुशकिस्मत लोग हैं जिनको हमारे इतने अच्छे अच्छे उस्ताद मिले हैं यहाँ पर। बहुत सारा इनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी आगे चले गए हैं, और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी
تعلیم میں بھی کافی آگے ہیں. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے, اور آپ لوگوں سے بھی یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو, جو آنے والے چھوٹے بچے ہیں, 4 سال کا, 5 سال کا بچہ, 6 سال کا, ان کو اسکول میں ڈالیے, ان کو مت گھر میں بیٹھیے, کوئی ڈراپ آؤٹ, کوئی ادھورے تعلیم مت دیجیے. گورنمنٹ ہر کوئی فری فیسلٹی آپ کو آج دے رہی ہے. صرف آپ سے یہ تعاون ہے کہ آپ اپنے بچے کو اسکول میں لے جائیے اور اسے پوچھیے کیا استاد اکرم اسکول آتے ہیں, کیا آپ کو اچھی طرح سے پڑھایا جا رہا ہے. یہ آپ کا حق ہے, آپ سے اللہ تعالیٰ بھی پوچھ کرے گا, گورنمنٹ بھی آپ سے پوچھے گی. یہی بچہ آپ کو کل قیامت کے دن یہاں سے پکڑے گا کہ میرے لیے آپ نے کیا کیا. تو امید کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ان تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ اور بھی کبھی ملاقات ہوگی. تھینک یو.